بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے کورونا وائرس کی تازہ ترین فگرز کے ساتھ۔ تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا کی زد میں آ کر 41 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور شہر میں اموات کی مجموعی تعداد 512 ہو چکی ہے، جبکہ 1166 افراد میں وائرس کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1166 مزید افراد میں وائرس کی تصدیق کے بعد مجموعی تعداد 33,090 ہو گئی۔ شہر میں اموات کی مجموعی تعداد 512 ہو گئی۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق پنجاب میں کورونا وائرس کے 2538 نئے کیسز سامنے آنے پر مجموعی تعداد 64,216 ہو گئی۔ صوبے میں کورونا وائرس سے 82 مزید اموات ہونے کے بعد تعداد 1,347 ہو چکی ہے۔ اب تک 4,70,083 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جناح ہسپتال میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ مریضوں کو آکسیجن نہ ملنے پر ہسپتال انتظامیہ اور لواحقین آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ جناح اسپتال میں لواحقین اور انتظامیہ کے مابین جھگڑا، اس دوران ڈنڈوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ تصادم ایم ایس جناح اسپتال کے دفتر کے باہر ہوا۔ لڑائی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جس میں انتظامیہ اور لواحقین میں ہونے والے تصادم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جھگڑے کے باعث مریضوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر یحییٰ کا کہنا تھا کہ آکسیجن پریشر کم ہونے پر جھگڑا ہوا، جسے اطلاع ملتے ہی فوری حل کر لیا گیا۔ ہاسپٹلز میں آکسیجن کی کمی سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت متحرک، 10 سے 15,000 گیس سلنڈرز کے لیے وفاق سے رابطے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر صنعت میاں اسلم اقبال اور چیف سیکریٹری جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ادویات کی مناسب قیمتوں پر فراہمی اور سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے سخت ترین اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبے میں ادویات کی بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بے رحم کارروائی شروع کرنے کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال اور چیف سیکریٹری جواد رفیق ملک نے صدارت کی، جبکہ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر، ڈویژنل کمشنرز اور آر پی اوز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اجلاس میں ادویات کی مناسب قیمتوں پر فراہمی اور سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے سخت ترین اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال وینٹیلیٹرز کے چارجز کو فروری 2020 پر منجمد کرنے کے ہیلتھ کیئر کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ اجلاس میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر 10 سے 15,000 آکسیجن سلنڈرز منگوانے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ آکسیجن فراہم کرنے والی گاڑیوں کو 24 گھنٹے چلنے کی اجازت ہوگی۔ آئی جی کو ہدایت کی گئی کہ آکسیجن والی گاڑیوں کو صوبے میں کسی جگہ نہ روکا جائے، جبکہ آکسیجن بنانے والی کمپنیوں کو بجلی کی بندش سے استثناء دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں میں بدستور اضافہ، لاک ڈاؤن کے بعد 31 سے 45 سالہ افراد وائرس کی لپیٹ میں آنے لگے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق عمر رسیدہ افراد کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ عمر رسیدہ افراد کا وائرس کی زد میں آنا مزید اموات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد 31 سے 45 سالہ افراد وائرس کی لپیٹ میں آنے لگے ہیں۔ سرکاری اداروں کے مابین رابطے کا فقدان ہے۔ ضلع انتظامیہ نے شہر کے 61 علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا، جبکہ پی ڈی ایم اے کی دستاویزات میں لاک ڈاؤن ایریاز کی تعداد 143 لکھی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کیے گئے علاقوں کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت لاک ڈاؤن کیے گئے علاقوں میں سرکاری اداروں کے مابین رابطے کے فقدان کا انکشاف ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے شہر کے 61 علاقوں کو لاک ڈاؤن کرنے کی فہرست جاری کی، جبکہ پی ڈی ایم اے کی فہرست کے مطابق لاک ڈاؤن زدہ علاقوں کی تعداد 143 ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے راجہ خرم شہزاد عمر نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کیے گئے علاقوں میں زیادہ تر پوش علاقے شامل ہیں، جہاں راشن کی فراہمی کی ضرورت نہیں۔ تاہم پی ڈی ایم اے کے پاس اسٹاک میں پڑی اشیاء خورونوش متوسط علاقوں میں تقسیم کریں گے۔ پی ڈی ایم اے کی ایک ایپ بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں لوگ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ابھی جو جتنے بھی ڈونرز ہیں، ڈونر کی طرف سے جو بھی کنٹریبیوشن آئے گی وہ ہم ایسے علاقوں میں جو لاک ڈاؤن ہیں اور جو غیر متمول ہیں وہاں پہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے ضرور پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے احساس کفالت پروگرام کے تحت 57 ارب روپے تقسیم کیے۔ اس وقت احساس پروگرام کے ساتھ چوتھی کیٹیگری بھی اس دن پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے، جو لیبر کیٹیگری ہے وہ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے، اور یہ کل ملا کے ٹوٹل چاروں کیٹیگریز میں تقریباً 60 سے 70 لاکھ لوگوں کو یہ فائنینشیل کیش اسسٹنس دی جائے گی۔ پی ڈی ایم اے کی دستاویزات کے مطابق صوبہ بھر میں 1635 ایریاز میں 1,06,361 گھر، جبکہ 6,91,623 شہریوں کو لاک ڈاؤن کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور کے 143 لاک ڈاؤن ایریاز میں 71,303 گھر، جبکہ 2,94,875 افراد لاک ڈاؤن ہیں۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔
शहर में गर्मी की शदीद लहर, ऊपर से लॉकडाउन, साथ ही लेस्को ने भी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। शहरी कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए घर बैठें तो बिजली नहीं होती, जाएं तो जाएं कहां। शदीद गर्मी की लहर और कोरोना वायरस के खौफ ने शहरियों का जीना मुश्किल कर रखा है। ऊपर से लेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का तड़का भी शुरू हो चुका है। शहरी कहते हैं माली हालात पहले बुरे हैं, अब लोड शेडिंग से मजीद कारोबार मुतासिर होंगे। अगर कोरोना से बचने के लिए घर बैठना हो तो लोड शेडिंग नहीं जीने देती। लाइट ही नहीं आ रही, पेट्रोल खर्च हो रहा हमारा ज़्यादा, और ऊपर से गर्मी भी ज़्यादा आपके सामने, वो कोई हिसाब किताब नहीं है। इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 50 के करीब जा रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। लोड शेडिंग जो है वो इंसानों की जान ले रही है और ऊपर से कोविड-19 भी है, उससे भी इंसानों की जान जा रही है। दूसरी जानिब लेस्को का कहना है कि बिजली की तलब और रसद में 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन अली नुमान के साथ वकार गुम्मन, लाहौर। और वफाकी हुकूमत के नोटिस भी बेकार हो चुके हैं। शहर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब भी पेट्रोल पंप्स को मतलूबा सप्लाई फराहम नहीं कर रही। पीएसओ, शेल, टोटल समेत दीगर कंपनियों के पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत से शहरी परेशान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने वफाकी हुकूमत के नोटिस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। शहर में ताहाल पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत दूर नहीं हो सकी। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से शहरियों और हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने का सिलसिला जारी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 20-20 हजार की तलब वाले पेट्रोल पंप्स को सिर्फ 5 से 8 हजार लीटर रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत दे रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पंप्स को ऑपरेशनल दिखाया जा सके। उनसे कोई भी चीज़ हैंडल नहीं हो पा रही, किसी किस्म की भी, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो किसी किस्म की भी कोई भी एक्टिविटी हो। प्राइवेट कंपनियां तो एक जानिब पीएसओ पंप्स पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। जेल रोड पर वाक़े पीएसओ पर 3 हफ्तों से पेट्रोल गायब है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ हाई ऑक्टेन बेचा जा रहा है। शहरियों ने बहरान खत्म न होने पर वफाकी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना था कि अगर वजारत पेट्रोलियम बहरान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो इसे खत्म कर दें। पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं कि प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने आपस में तय कर रखा है कि जब तक 1 जुलाई से कीमतें नहीं बढ़ती, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सप्लाई तलब के मुताबिक नहीं देंगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त मुमकिन ना बनाई जा सकी। शुगर डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी बंद कर दी है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत अपने नरखों पर चीनी फरोख्त नहीं करवा सकती तो कीमत मुकर्रर क्यों करती है। अदालती हुक्म के बाद जिले इंतजामिया ने चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, लेकिन इस कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। शहर में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। हुकूमती निरखों पर चीनी की फरोख्त के लिए कोई इकदामात ना किए जा सके। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कीमत तो मुकर्रर कर दी जाती है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। नहीं जी, 70 रुपए नहीं है, मार्केट में 50 रुपए रेट है चीनी का। ठीक है, हम यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, 68 रुपए किलो चीनी का मिल रही है यहाँ पे, हर जगह पे मिल रही है यूटिलिटी स्टोर पे। दूसरी तरफ चीनी की कीमत के मामले पर शुगर डीलर्स हुकूमत से नाला हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने उनकी मुशावरत के बगैर चीनी की कीमत मुकर्रर की। उन्हें शुगर मिलों से चीनी 76 रुपए में मिलती है, तो वो 70 रुपए में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। कैमरामैन सजाद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के कौमी खजाने पर वार जारी है। मेट्रो ट्रेन मंसूबे की लागत में एक बार फिर 4.5 अरब का इजाफा हो चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मेन प्रोजेक्ट पर 4 अरब 42 करोड़ 40 लाख 28 हजार रुपए इजाफी खर्च हुए। मंसूबे पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर पंजाब हुकूमत ने मजीद 13 लाख 65 हजार रुपए खर्च कर दिए हैं। पहली मुल्की लाइट रेल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अपनी लागत और तकमील के मुताबिक डेड लाइन्स अबूर कर चुकी है। 27 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर 3 खरब से जायद रकम खर्च हो चुकी है। कोरोना के बायस ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा फाल होने में मजीद ताखीर का शिकार है। आखिरी डेड लाइन 11 जून दी गई थी। महकमा एक्साइज का स्मार्ट कार्ड मंसूबा नाकाम हो गया। नई नंबर प्लेट्स का इजरा भी तातुल का शिकार है। 7.5 लाख सारिफीन फी भरने के बावजूद 6 माह से स्मार्ट कार्ड के मुंतज़िर हैं। एक्साइज हुकाम का मटेरियल खत्म होने का बहाना। लाहौर समेत पंजाब भर में रोजाना की बुनियाद पर
हजारों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती हैं, जिससे महकमा एक्साइज को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। लेकिन शहरी जिस मकसद के लिए रकम अदा करते हैं वो पूरा नहीं हो रहा। शहरियों को गाड़ी की शिनाख्त के लिए जारी किया जाने वाला रजिस्ट्रेशन कार्ड का इजरा नहीं हो रहा। शहरियों की जानिब से बार बार शिकायत की गई, लेकिन डिलीवरी ठीक नहीं हो सकी। 7.5 लाख से ज्यादा शहरी अब भी फीस जमा करवाने के बावजूद कार्ड से महरूम हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अब प्रिंटिंग का मटेरियल खत्म होने की वजह से कार्ड ताखीर का शिकार हैं और जुलाई के अख्ताम पर मटेरियल की सप्लाई होगी, जबकि इस प्रोजेक्ट के आगाज पर हुकूमत ने 48 घंटों में कार्ड गाड़ी मालिक तक पहुंचाने का वादा किया था। अली साई, सिटी 42। और रवां साल का पहला सूरज ग्रहण कल होगा, जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि सूरज ग्रहण को देखने से गुरेज किया जाए। सूरज की शुआएं आंखों से रेटिना और बेनाई को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण सुबह 8:40 पर शुरू होगा, 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर यह इख्तिताम पजीर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दुरानिया 1 घंटा 50 मिनट होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के औकात में अंधेरा छा जाएगा। चांद गर्दिश करता सूरज और जमीन के दरमियान आ जाएगा और सूरज की रोशनी काफी ज्यादा मध्यम हो जाएगी। शहरियों को सूरज की तरफ देखने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि सूरज के हालत से निकलने वाली शुआएं आंख में जिल्द को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ज़रूर हैं, क्योंकि इसको एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में भी और बाकी भी सारे अलूम में इसको बड़ा इम्पोर्टेंटली देखा जाता है। और पहले से पूरे साल के हर साल में 4-5 चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होते हैं, इसको रीड किया जाता है और इसके बारे में रेमेडीज़ भी दी जाती हैं कि इसमें जो हमारा दीन भी बताता है कि नमाज कुसूफ अदा करनी चाहिए, सदकात देने चाहिए, तो इसके बारे में रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये इस वक्त लगता है जब चांद सूरज को पूरी तरह से ढांप लेता है। इसे देखने से आंखों की बेनाई मुतासिर होगी। माहिरीन फल्कियात और इल्मे नजूम के मुताबिक 21 जून को सूरज ग्रहण के सबसे ज्यादा असरात कैंसर और जेमिनी पर होंगे, जबकि चांद सूरज का दरमियानी हिस्सा कवर करेगा, जिससे सूरज के गिर्द रिंग ऑफ फायर बनेगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, सिटी 42। अब बात करें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बजट तजावीज़ 2020-21 की तैयारियों के हवाले से, जो कि शुरू कर दी गई हैं। LDA के बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर शहर की तरक्की अब LDA बजट 2020-21 के रहमो करम पर हो गई। LDA सिटी मंसूबे के तरक्याती कामों के लिए 5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। जारी तरक्याती मंसूबा फिरदौस मार्केट अंडरपास के लिए 97 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। नया मुजाविजा मेगा प्रोजेक्ट क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबे के लिए 1 अरब 20 करोड़। LDA एवेन्यू 1 स्कीम के तरक्याती कामों के लिए 40 करोड़। कैवलरी ग्राउंड खालिद मस्जिद चौक के एट ग्रेड रीमॉडलिंग के लिए 35 करोड़ रखने की तजवीज़ दी गई है। कैनाल बैंक रोड, हरबंसपुरा ता जलो रोड कारपेटिंग के लिए 8 करोड़। वजीर आजम पोर्टल के तहत स्कीमों के लिए 25 करोड़। फौजी फाउंडेशन तादरार शहीद रोड की मुरम्मत और बहाली के लिए 6 करोड़। लाहौर कैनाल पर पैड सिट्रन ब्रिज की तामीर के लिए भी 6 करोड़। शाहराह नजरिया पाकिस्तान ता उम्मीद चौक सर्विस रोड की बहाली के लिए 6 करोड़। LDA रिहायशी स्कीमों और शजरकारी के लिए 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। मिसिंग लिंक स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के लिए 20 करोड़ रखने। वॉक एंड शॉप अरीना प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ की तजवीज़ दे दी गई। बजट तजावीज़ को गवर्निंग बॉडी में भेजने की हतमी मंजूरी DG LDA देंगे। सालाना तरक्याती मंसूबों में पंजाब हुकूमत से LDA को सिर्फ 35 करोड़ का शेयर मुयस्सर होगा। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान पर पंजाब को विफाक से 1 खरब 28 अरब के वाजिबुल अदा फंड्स न मिलने का मामला है। गुज़ार हुकूमत विफाक से वाजिबुल अदा फंड्स लेने में नाकाम हो चुकी है। नए माली साल में पंजाब ने विफाक से मिलने वाले वाजिबुल अदा फंड्स भी कम मुख्तस किए हैं। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल का बजट पेश करने से कबल विभाग से राबिता किया कि उन्हें वाजिबुल अदा फंड्स का इजरा किया जाए, जो अरसे से विफाक की जिम्मेदारी है, लेकिन वो फंड्स तो नहीं मिल सके। मगर अब बजट दस्तावेजात के मुताबिक विफाक ने इस वाजिबुल अदा रकम के इजरा का हजम नए माली साल में कम कर दिया है। टाइगर फोर्स की मॉनिटरिंग के लिए पंजाब में अब नई ऐप बनाई जाएगी। टाइगर फोर्स पंजाब में अपनी कारकर्दगी और मॉनिटरिंग रिपोर्ट इस नई ऐप पर देंगे। टाइगर फोर्स के लिए ये ऐप कोविड कंप्लायंस के नाम से बनाई जा रही है। ऐप के तहत टाइगर फोर्स रोजाना की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट ऐप पर देगी। वजीर आजम इमरान खान ने ऐप बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक ये कोविड कंप्लायंस ऐप जल्द पंजाब में मुतारफ कराई जाएगी। शहरी भी इस ऐप पर अपनी शिकायत का इंदराज करा सकेंगे।
जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से टाइगर फोर्स पर तनकीद की गई है। कहते हैं कि टाइगर फोर्स कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए टाइगर फोर्स आवाम के लिए एक और धोखा है। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अलहाज शेख रोहेल असगर का कहना है कि टाइगर फोर्स इमरान खान ने अपनी हिफाजत के लिए बनाई है, अवाम की खिदमत के लिए तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। MPA चौधरी शहबाज अहमद का तो कहना है कि अगर किसी को टाइगर फोर्स दिखाई दे तो वो इनाम देने को तैयार हैं। मुझे एक पॉइंट पे भी दिखा दे, किसी जनाजे में शामिल हो, किसी खुशी में, किसी गमी में, जहाँ पर लॉकडाउन किया वहाँ पे नजर आ जाए, किसी अस्पताल में नजर आए, कोई भी ऐसी जगह पे नजर मुझे आ जाए, मुझे बता दे, मैं आपको इनाम दे दूंगा। टाइगर फोर्स, इसके पीछे वामिल क्या है? इसका मकसद कुछ और है। देखिए ना, अगर टाइगर फोर्स आप इसलिए बना रहे हैं कि ये कोविड-19 के साथ लड़ेगी, तो बाबा पहले आप जो लड़ रहे हैं उनके तो आप मामला को दुरुस्त कर लें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सुमेरा कोमल का कहना है कि नाअहल हुक्मरानों की नाअहली की वजह से कोरोना वायरस फैला। अब टाइगर फोर्स कहीं पर भी किसी फलाही काम के लिए नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है इनकी टाइगर फोर्सेस? हमें तो नजर नहीं आ रही। जिस तरह इमरान नियाजी नजर नहीं आता, वसीम अकरम प्लस नजर नहीं आता, इसी तरह टाइगर फोर्सेस भी नजर नहीं आती। और जो हॉस्पिटलों के हाल हैं, अल्लाह माफ करे, लोग मर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि टाइगर फोर्स सियासी एजेंडा है। कोरोना वायरस के हवाले से अवाम में शऊर पैदा करना टाइगर फोर्स के बस की बात नहीं। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ उमर असलम। हवाई सफर के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों के लिए बड़ा फैसला किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क में बैनुल अक़वामी परवाज़ों को बहाल कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों की बहाली का नोटिस भी जारी कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक तमाम गैर मुल्की मुसाफिर और चार्टर परवाज़ों को पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। परवाज़ों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए स्लॉट्स की औकातकार CAA जारी करेगा, जबकि ग्वादर और तुर्बत के लिए परवाज़ों पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी और परवाज़ों की मज़कूरा औकातकार में आमदोरफ्त अथॉरिटी के SOPs के तहत होगी। कार्गो परवाज़ों समेत खसूसी और डिप्लोमेटिक परवाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला खुसूसी इजाज़त के तहत जारी रहेगा। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सिस एप्लीकेशन हैक कर ली गई है। एप्लीकेशन हैक होने से 4 लाख असातिज़ा और 1.5 लाख तुलबा का डेटा चोरी होने का खदशा पैदा हो गया है। ज़राए के मुताबिक सिस ऐप हैक होने के बाद गूगल प्ले स्टोर से भी गायब कर दी गई है। सिस एप्लीकेशन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने तैयार करके दी थी। एप्लीकेशन हैक होने से असातिज़ा के तबादलों का मामला भी खटाई में पड़ने का खदशा है। मुतवस्सित तबका अब सोने को भूल जाए। सोने की कीमतों ने मुल्क की तारीख के पुराने रिकॉर्ड पाश कर डाले हैं। रवा कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम तक सोना मजमूई तौर पर 3,500 रुपए फी तोला महंगा हुआ है। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में मजमूई तौर पर सोना 3500 रुपए महंगा होने के बाद खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 1,15,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 93,041 रुपए हो गई। जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन सराफा एसोसिएशन ताहिर महमूद भट्टी ने कहा कि मुकामी सतह पर डॉलर और आलमी मार्केट में सोना महंगा होने से मुकामी सराफा बाजारों में भी सोना महंगा हुआ। इस वक्त 2 रीज़न सामने आ रही है। एक तो हमारी जो डिवैल्यूएशन हो रहा है उसकी वजह से भी सोना बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि 167 पे चला गया हुआ डॉलर, इससे भी ऊपर। दूसरा रीज़न ये है कि आलमी मंडी में सोने की कीमत बढ़ रही है डिमांड की वजह से। इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस है नीचे चले गई, वहाँ से इन्वेस्टर निकल के तकरीबन सारे का सारा जो मेन इन्वेस्टर है वो सारा गोल्ड की तरफ आ गया। आलमी मंडी में इसमें डिमांड बढ़ गई हुई है, उस वजह से गोल्ड की कीमत दिन ब दिन ऊपर चढ़ती जा रही है और ये आइंदा वक्त में इसने और मजीद ऊपर जाना है। रवां कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $13 का इजाफा देखा गया, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी सराफा मंडियों में फी औंस सोने की कीमत $1,742 तक जा पहुँची। सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे से खवातीन का कहना था कि अब सोने की बजाय मसनूई जेवरात पर गुजारा करना पड़ेगा। सोना इनकी बसात से बाहर हो गया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, छोटे कारोबारी अफराद को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। तफसीलात जानते हैं फरहान जामीन की रिपोर्ट में। शहर में बढ़ते कोरोना केसेस के बाईस 66 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन के बाईस छोटा कारोबारी तबका परेशानी में मुब्तला हो गया। बर्फ, रोटी, दूध, दही, गोश्त समेत दीगर छोटे कारोबार स्मार्ट लॉकडाउन के बाईस शदीद मुतासिर हुए हैं। दुकानदार कहते हैं सेल कम हो गई, अखराजात पूरे नहीं होते। हमारे कारोबार में ज़्यादा फर्क पड़ा है। बेसिकल इस दिनों में हमारे पास लोग बर्फ़ के लेने के लिए सिफारिशें लाते थे। आज ये दौर आ गया तो हम लोगों को बुला के दे रहे बर्फ़।
کاروبار بند ہو گئے ہیں، گلی بند کر دیا ہے، نہ کوئی آتا ہے کوئی چیز لینے، نہ کوئی مطلب کہ جو جاتا ہے باہر، نہ باہر جانے دیتے ہیں. پہلے ہی کاروبار نہیں ہے سی، جدوں دا لاک ڈاؤن لگا ہے تمبو کناتا لگیاں، کاروبار ہے ہی نہیں، بہت ختم ہو گئے کاروبار. کم شم نہیں ہے سارے دن ٹھیک ہے. آج 10 دن ہوئے تو مکا کے اندر رکھے آئی تین جی پہ ہے. لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ گلیاں بند ہونے کی وجہ سے آمد و رفت کم ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے، جس سے گاہک کم ہو گئی ہے. کیمرہ مین خالد محمود کے ہمراہ فاران یامین، سٹی 42. چین سٹورز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے FBR سے دعوے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. چیئرمین سٹورز ایسوسی ایشن رانا طارق کہتے ہیں کہ FBR ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو رجسٹر کرے. FBR بھی تبدیلی سرکار کی ڈگر پر چل نکلا. بزنس کمیونٹی سے وعدے کرو اور بھول جاؤ. چین سٹور ایسوسی ایشن کے وفد نے صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ اور نائب صدر میاں زاہد جاوید سے ملاقات کی. چیئرمین رانا طارق نے کہا کہ چین سٹورز جن ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹر سے مال خریدتے ہیں وہ انہیں کچی رسیدیں دیتے ہیں. حکومت نے جو ٹیئر 1 کا ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کے تحت جتنی بھی شرائط انہوں نے طے کی تھیں اور انہوں نے جن چیزوں کو بجٹ میں ہمارے لیے ریلیف کے طور پہ لانا تھا ان میں سے کچھ بھی ہمیں پرووائڈ نہیں کیا گیا. تو دوستوں نے بہت مایوسی کا اظہار کیا ہے اور وہ پریشان ہے کہ حکومت کا اس وعدہ خلافی کے اوپر کہاں اور کس پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی جائے. صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے چین سٹورز ایسوسی ایشن کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ FBR کچی رسیدوں کو ماننے سے انکار کر دے گا. انہوں نے کہا کہ دیگر وعدوں کی طرح ود ہولڈنگ ٹیکس 1% کرنے اور آڈٹ کی تلوار ہٹانے کا وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا. کوئی بھی بات ان کی نہیں مانی گئی. اگر گورنمنٹ نے کوئی بات ان کی مانی ہے تو میری ریکویسٹ ہے لاہور چیمبر کی کہ آپ ان کا جواب دیں تاکہ وہ لوگ اپنے معاملات کو سیدھا کر سکیں. بٹ ادروائز جو میں ان سے بات آج میری جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم انٹیگریشن میں جا سکیں. چین سٹور ایسوسی ایشن پاکستان کے عہدیداران نے کہا کہ لاہور چیمبر FBR پر وعدے پورے کرنے کے لیے دباؤ ڈالے. بصورت دیگر چین سٹورز کا FBR کے ساتھ انضمام ممکن نہیں ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. فیس ماسک کو جہاں شہریوں کو وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہیں ڈاکو بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. فیس ماسک کی وجہ سے ڈاکو کی پہچان مشکل ہو گئی ہے. اب کورونا سے بچانے والے فیس ماسک ڈاکوؤں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. شہر میں لگے CCTV کیمرے فیس ماسک پہننے ڈاکوؤں کی شناخت نہیں کر پا رہے، جس کا فائدہ ڈاکوؤں کو براہ راست پہنچ رہا ہے. پولیس ریکارڈ کے مطابق 1 مارچ سے 1 جون تک شہر میں ڈکیتی کی 630 وارداتیں رونما ہوئیں، جس میں سے 400 سے زائد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے فیس ماسک کا استعمال کیا. CCP لاہور کا کہنا ہے کہ فیس ماسک سے شناخت کا عمل مشکل ہوا ہے، لیکن دیگر طریقوں سے ملزمان کی گرفتاری کا عمل جاری ہے. فیس ماسک آج کل جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے نیچرلی ایک ہے کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. ڈیفیکلٹی ڈیفینیٹلی اس سے آ رہی ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں جو کیمراز کی یوٹیلیٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اور ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو ٹریس آؤٹ بھی کرتے ہیں اور ٹریس آؤٹ کر کے کیسز کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تو وہ ہمارا ساتھ ساتھ پروسیس چلا اور الحمدللہ ہماری چلان ریشو پہلے سے کافی امپروو ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں بہت اوپر چلی گئی. لاہور پولیس کے دعوے اپنی جگہ، لیکن شہر میں لاک ڈاؤن اور مالی بحران کے باعث جرائم پیشہ افراد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. عرفان ملک، سٹی 42. آشیانہ اسکینڈل کیس میں 1.5 سال بعد 2 گواہوں ریاض حسین اور ثاقب کی شہادت مکمل کر لی گئی ہے. فاصل جج امجد نذیر چودھری نے ریفرنس کے دیگر 3 گواہوں کو 25 جون کے لیے پابند کر دیا ہے. احتساب عدالت میں ایک ملزم شاہد کورونا کی وجہ سے پیش نہ ہوا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک ایک گواہ بھی مکمل نہیں ہوا. عدالت نے وکلاء کو کہا کہ مجھے بتائیں کیس کو کس طرح چلایا جائے. فاضل جج کے سوال پر وکلاء نے کہا عدالت کو اختیار ہے جیسے وہ کیس کو چلائے، ہم معاونت کے لیے تیار ہیں، لیکن قانون ہے جب ملزم پیش نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں گواہ نہیں ہو سکتے. عدالت نے کہا کہ پھر کیس کی سماعت جیل میں رکھ لی جائے تاکہ تمام ملزم حاضر ہوں. فاضل جج نے کہا اس وقت گواہ موجود ہیں، وہ بھی 1.5 سال سے آ رہے ہیں، اس کو ہر حال میں مکمل کرنا ہے. اس پر وکلاء نے رائے دی کہ جو ملزم غیر حاضر ہو وہ حاضری معافی کی درخواست کے ساتھ اپنا وکیل مقرر کرے تاکہ کارروائی چلتی رہے. آئندہ
आइंदा से किसी की बगैर प्लीडर हाजिरी माफ नहीं होगी। अदालत में वकला की इत्तफाक राय से समाअत शुरू हुई और गवाह रियाज अहमद पर आहा चीमा के वकील अमजद परवेज भट्ट और शाहिद शफीक के वकील काजी मिसबा एडवोकेट ने जरा मुकम्मल की। अदालत में फवाद हसन फवाद ने अपनी जगह प्लीडर शहबाज अहमद एडवोकेट को मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी, जो मंजूर कर ली गई। अदालत ने केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। सानहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच 24 जून को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच सानहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ दायर 2 दरखास्तों पर समाअत करेगा। बेंच में हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस आलिया नीलम शामिल हैं। अदालत पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई नई JIT को काम से रोक चुकी है और पंजाब हुकूमत ने सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील दी थी। पाकिस्तान रेलवे मजदूर इत्तेहाद तनख्वाहों में इजाफा न करने और नौकरियों से निकालने के खिलाफ सीख पा हो गए। इंजन शेड में एहतजाज और रैली निकाली। मरकजी कायदीन ने ट्रेन ऑपरेशन बंद करने का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान रेलवे मजदूर यूनियन का लाहौर इंजन शेड में एहतजाजी मुजाहिरा, हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए मजदूरों ने हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मजदूरों ने वाशिंग लाइन से गरी शाहू पुल तक एहतजाजी रैली निकाली और सड़क भी ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने बजट का पुतला भी नजर आतिश किया। रेलवे मजदूर यूनियन के कायद सरफराज खान और महमूद नग्याना समेत दीगर रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से मजदूरों को निकालने के लिए लिस्टें तैयार करने को मजदूर कश इक़दाम करार दे दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। अगर तनख्वाहों में 10% इजाफा न किया गया तो फिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हम बिल्कुल मजबूर हो गए, हम बिल्कुल बर्बाद हो गए कि तमाम सरकारी मुलाजमों को नजरअंदाज करते हुए ये बजट पेश करना और रेलवे के मजदूरों की छांटियां करना। आज इसके खिलाफ तारीखी रैली और इसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए उसमें ऐलान किया जाएगा और एक ऐसा इक़दाम किया जाएगा जिससे जालिम बजट पेश करने वालों का मजदूर जीना दुभर कर देंगे। मजदूरों ने वजीर आजम से मुतालबा करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की तरह मजदूर की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। जायज मुतालबात के लिए सरधर की बाजी ही लगा देंगे। कैमरामैन अंजम शहजाद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। और मुर्गी खाना रोड गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर गोल चक्कर से एयरपोर्ट की जानिब जाते हुए सड़क जगह जगह टूट फूट का शिकार है, जो गाड़ी या मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइस अज़ियत है। शहरी कहते हैं कि सड़क की हालत रोज ब रोज खराब हो रही है, मगर तामीर की जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं। नुकसान साड़ी मोटरसाइकिल खराब होती है, हर गड्डी जी गुजरती है तो झटके खाए गुजरती, कुछ ना कुछ नुकसान ही होना ना। पेंचर साड़ियाँ गड्डियां होंगी। बारिश का पानी पता नहीं सारे लगे इत्थे ही आंदा। मेरा ख्याल 4-5 सालों में लंघ देनो मैं तो हालत बेहतर ही देखी। रोड सारा टुटा, कोई काम नहीं है, कोई सवारी नहीं, रोड ते जलील होईदा, पेट्रोल पल्ले साड़ के घर नूं जाईदा शाम नूं। शहरियों का कहना है कि रोड की तामीर के लिए 12 दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। मुताल्लिका इदारे शहरियों की शिकायत का अजाला करने को तैयार नहीं। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के हमरा फारहान यामीन, सिटी 42। बल्दियाती इलेक्शन जाने कब होंगे, लेकिन सरकारी महकमों के माबैन खतो किताबत का सिलसिला जारी है। बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत बल्दियाती इंतखाबात के लिए दरकार हल्का बंदियों के मामले पर पेशरफ्त हुई है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स को सर्कल, मुहजाजात और आबादी के शुमारियाती ब्लॉक्स की तफसीलात फौरी फराहम करने का हुक्म दे दिया गया है। नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज पंचायत काउंसिल्स की हल्का बंदियों को जल्द निपटाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स को नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज पंचायत काउंसिल्स की हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन की फौरी मुआवनत करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तहसील की सतह पर मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ टाइगर्स कमेटी के मेंबरान के नामों का तयन कर दिया गया है। ACCD तब्रेज़ मरी कमेटी के कन्वीनर होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।